ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਅੱਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ टी d2y/dt ਸਕੁਅਰ प्लस 2t + 3 dy/dt प्लस t + 3y इज इक्वल टू e की पावर -t। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੈਥਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ t ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ y ਬਾਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਕੇ y ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਟਰਮਸ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ t d2y/dt ਸਕੁਅਰ प्लस 2t dy/dt प्लस 3 dy/dt प्लस ty प्लस 3y e की पावर -t। ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੇਕ ਲੈਪਲੇਸ ट्रांसफॉर्म ऑन दो साइड। लैपलेस ट्रांसफॉर्म दे दोने पासे लैपलेस ट्रांसफॉर्म मैं कला कला कर रहा जी। ये स्टैप मैं लिख रहा कि समझ आ जाए कि किमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है। कॉन्स्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी dy/dt 3 बाहर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई प्लस 3 बार लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y। ਇਹਦਾ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ਹੁੰਦਾ 1/s - अल्फा s + 1 ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ t ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਊਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वो भी सॉल्व होगी। मैं दोबारा बोल रहा बाकी क्वेश्चन करांगे समझ आ जाऊगा कि ये जिथे टी वेरिएबल कोएफिशिएंट होगा वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म करांगे इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करांगे। ये तो करना ही करना। एक स्टैप होर एक्स्ट्रा ऐड होगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी अपने को और डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करनी होगी अपने। एक स्टैप होर एक्स्ट्रा हो गया। तो देखो किवें ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ t ਜੇ t ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ t ਦੀ ਪਾਵਰ n f ਆਫ t। ਇਹਦਾ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ f ਆਫ s ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ t ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ s ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ उमी है जी। ये आ जाऊगा s² y बार -sy0 -y'0। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਵੇ 1। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ। तो देखो ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਹ ਵੀ t ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਊਗਾ ਜੀ sy ਬਾਰ -y0। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਬਿਕੋਜ਼ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3sy ਬਾਰ y0। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ y ਦਾ ਲੈਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ y ਬਾਰ ਤੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ t ਮਲਟੀਪਲਾਈ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਕੁਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ प्लस 3y बार इज इक्वल टू 1/s+। स्टैप ध्यान ना करने। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ a ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ b ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਲੈਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਲੈਫਟ y0 a ਮੰਨ ਲਿਆ
ਅਤੇ y डैश 0 b। ये कोई फर्क नहीं पैंदा है, आंसर ए बी की फॉर्म च आ जाएगा। तो यह आ गया माइनस डी बाई डी एस स्केयर वाई बार, ये आ गया माइनस ए एस माइनस बी। अगे माइनस 2 डी बाई डी एस वाई बार माइनस ए। अगे आ गया 3 एस वाई बार माइनस ए माइनस डी वाई बार डी एस प्लस 3 वाई बार अपॉन एस प्लस 1। चलो हुण आपां डेरिवेटिव ध्यान ना करना जी, ये प्रोडक्ट रूल लावांगे, ये प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट सैकेंड मल्टीप्लाई च ये आ गया जी माइनस बाहर, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। ये कांस्टेंट है जी, एस का 1 हो गया माइनस ए, इसका बी 0 हो गया। वो भी प्रोडक्ट रूल लावांगे आप, माइनस 2 बाहर है जी, करना एस एज इट इज डी वाई बार अपॉन डी एस प्लस वाई बार एस का 1 हो गया, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव करांगे 0 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव नहीं है, मेरे डेरिवेटिव नहीं किया है, मतलब ये सीधे ही होगा 3s वाई बार माइनस 3a। तो ये सीधी आ गया प्लस 3 वाई बार अपॉन 1 अपॉन एस प्लस 1, एक चीज आ गई। हुण इहनूं मल्टीप्लाई कर लवांगे सारा, ये सारा मल्टीप्लाई कर लो। ये आ गया जी माइनस एस स्केयर डी वाई बार अपॉन डी एस माइनस 2s वाई बार प्लस ए। ये आ गया जी माइनस 2s डी वाई बार अपॉन डी एस माइनस 2 वाई बार प्लस 3s वाई बार माइनस 3a माइनस डी वाई बार अपॉन डी एस प्लस 3 वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। टर्म्स इकट्ठियां करांगे आप, आ टर्म्स इकट्ठियां कर लो जी, तो कॉमन कर लो, की कॉमन निकलेगा, ये जो माइनस कॉमन निकलेगा एस स्केयर प्लस 2s प्लस 1 डी वाई बार अपॉन डी एस। हुण वाई बारे टर्म्स इकट्ठियां कर लो, यह आऊगा जी एस का टर्म बन गई, का टर्म आ गई एस प्लस 3 वाई बार, ये दोनों जोड़ांगे आप माइनस 2s प्लस 3s, एस हो जाएगा प्लस 3 1 अपॉन एस प्लस 1। आह टर्म जोड़ लो आपस, कितना होगा माइनस 2a, उधर जाके प्लस 2a हो गया, ये टर्म सारियां आप ओवरऑल कंबाइन करनी। इस तो बाद ये आ गया माइनस एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया जी। इस तो बाद यही आ गया जी एस प्लस 3, थोड़ी गलती होगी, आ टर्म प्लस करने से आपस ए प्लस वाई बनना सीगा जी, एस प्लस 1 आना सी। हुण ये स्टैप इदां कहा सी, इहदे विच आपने करना की हुंदा, सारा सॉल्व करके तुहानूं कहा सीगा पहला लैपलेस ट्रांसफॉर्म लैके वाई बार कढ़ना हुंदा, उस तो बाद फिर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लैके वाई निकल जूगा। ये अपना यह प्रोसैस हुंदा सारे क्वेश्चनों में। पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम की आ रही हैगी आ, वाई बार नहीं आ रहा, वाई बार का डेरीवेटिव आ रहा, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। तो इन्होंने क्वेश्चनों में जिथे डेरीवेटिव के नाल टी मल्टीप्लाई होगा, उन्होंने एक स्टैप और एक्स्ट्रा आऊगा कि वाई बार सीधा नहीं होना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वाई बार दे विच,
पहला डिफरेंशिएशन सॉल्व करके फिर वाई बार कटांगे। तो डिफरेंशिएशन सॉल्व करने वास्ते मोस्टली एक कंसैप्ट लगेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिहदे विच आपां इंटीग्रेटिंग फैक्टर कढ़दे सीगे जी, फिर सोल्यूशन कढ़दे सीगे, ये उही कंसैप्ट लगूगा इहदे विच मोस्टली। जो देखो करना की है, वन करना चक नीचे ले जाओ, ये आ गया डी वाई बार अपॉन डी एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन, ये कट जाएगा एक टर्म। इधर आ गया माइनस वन अपॉन एस प्लस वन का क्यूब प्लस 2a अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है जी। ये कढ़ना होंगे पहला अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो की होंगे जी ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एफ, फिर सोल्यूशन की होंगे वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो देयरफॉर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ गया इंटीग्रेशन वन अपॉन एस प्लस वन डी एस ई दी पावर माइनस लॉग एस प्लस वन, ऊपर ले जाएंगे पावर वन अपॉन एस प्लस वन, ये पावर ऊपर जाएगी फिर ई तो लॉग एस हो जाएगी। देयरफॉर सोल्यूशन की बनेगा, सोल्यूशन इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एस प्लस वन क्यूब प्लस 2 अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर इहदा होल दा क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एस प्लस वाई बार, इस वाई बार तो वाई बार लवांगे, इस वाई सी तो वाई लिया। हम इतों वाई बार निकलेगा, इस स्टैप एक्स्ट्रा ऐड हो जाए इन्होंने क्वेश्चन। ये बन गए अपने को देयरफॉर वाई बार इज वाई बार अपॉन एस प्लस वन इज इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, माइनस वन अपॉन एस प्लस वन की पावर 4 प्लस 2a अपॉन एस प्लस वन का क्यूब डी एस प्लस सी। ये आ गया वाई बार अपॉन एस प्लस वन, यदि ऊपर इंटीग्रेशन कर लो, ये आएगा माइनस वन अपॉन माइनस 3 एस प्लस वन का क्यूब प्लस 2a अपॉन माइनस 2 एस प्लस वन का स्क्वायर डी एस, ये होगी इंटीग्रेशन प्लस आके बन जाएगी। ये थोड़ी जी गलती भी चेक करिए, इतने साइन नैगेटिव आऊगा 2a का, पिछों चेक कर लियो जी। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एस प्लस वन का क्यूब प्लस ए अपॉन एस प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा एस प्लस वन प्लस सी इंटू एस प्लस ए टर्म मल्टीप्लाई करा स्क्वायर आ जाएगा जी, ए टर्म मल्टीप्लाई तो पावर एक आ गया, इतना वाई बार निकल जाएगा। हम इनवर्स लैपलेस लैके बाकी काम सारा वही है। इनवर्स लैपलेस लवांगे टेक इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ए आ गया y इज इक्वल टू इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन 3 एस प्लस वन का स्क्वायर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन एस प्लस वन इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ये फर्स्ट शिफ्ट में लावांगे आप वो किमें 1 अपॉन 3 का बाहर कॉन्स्टेंट ई दी पावर माइनस टी ई दी पावर अल्फा टी बाहर आएगा, एस माइनस अल्फा नूं आपां ने एस विच रिप्लेस करना हुंदा है, यह सीधा आ गया।
नहीं गल देखनी है गौर नाल की है सी कॉन्स्टेंट बाहर इनवर्स लैपलेस ऑफ एस आ गया इनवर्स लैपलेस ऑफ 1 ये फॉर्मूले लिखवाए थे जी जो लेक्चर लाए ने पिछले आप वो फॉर्मूला की सी कि इनवर्स लैपलेस ऑफ एस की पावर एन जो है ये 0 होंगे जे एन नैचुरल नंबर हो जां 0 हो एस की पावर 0 एस की पावर 1 एस की पावर 2 एस की पावर 3 सारा का इनवर्स लैपलेस 0 होंगे एस की पावर 1 होगी भी 0 होगा ये एस की पावर 0 1 बन जाएगा ये एस की पावर 0 है ये 0 दोनों 0 हो जाएंगे जी तो ये आ गया 1/3 ई की पावर माइनस टी ये टी बन गया टी की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस ए ई की पावर माइनस टी ये भी 0 आ गया ये भी 0 देयरफॉर वाई का आंसर आ गया ई की पावर माइनस टी बाहर कढ़ लिया ये आ गया जी T/3 प्लस हूँ ये लभण वास्ते कोई कंडीशन गिवन नहीं जिवें लास्ट लैक्चर किया अपन तो ये आप ए की फॉर्म च रखा बस ये अपना आंसर आऊगा चलो देखो एक क्वेश्चन होर करवाना है नाल दा जी कंसैप्ट थोड़ा होर समझ आ जाऊगा जी तो नैक्सट क्वेश्चन करना आप वो देखो ये है जी टी d2y/dt² प्लस t-1 dy/dt माइनस y इक्वल टू 0 कंडीशन दी हुई है y 0 10 लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी y इज इक्वल टू 0 चलो उदी है जी पहला वांगू इनू पहला आप मल्टीप्लाई कर लिया जी फिर लिया आप टेक लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ये आ गया माइनस d/ds एस वाई बार माइनस s² y बार माइनस sy0 माइनस y'0 ये भी डेरिवेटिव होगा जी जिथे टी पे उस नाल डेरिवेटिव होना जी ये सिंपल है ये आ गया sy बार y0 माइनस y बार इज इक्वल टू 0 ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो गया हुण वैल्यू भर देने ये वैल्यू नहीं पता है कि सपोज कर लो जी कि लैट कर लो y'0 जो है वो a तो वैल्यू भर देने आप माइनस d/ds s² y बार s 10 हो गया जी माइनस a d/ds sy बार माइनस 10 sy बार माइनस 10 माइनस y बार इज इक्वल टू ये आ गया अपने कोल डेरिवेटिव किया जी माइनस बाहर रख लिया पहला फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट यदा किया प्लस 10 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी यदा किया माइनस बाहर पहला फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एज इट इज 1 हो जाएगा यदा 0 हो जाएगा जी माइनस sy बार प्लस 10 माइनस y बार इज इक्वल टू 0 हुण टर्म्स इकट्ठियां कर लैणे जिहड़ियां हुंदियां ने वो टर्म्स इकट्ठियां होणगियां आ डेरिवेटिव टर्म्स इकट्ठियां कर लो आ दो ही ने ये आ गया माइनस s² प्लस s dy बार अपॉन टी हुण आ टर्म्स इकट्ठियां कर लो कितना बनूगा जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बनेगी आ टर्म माइनस 2s माइनस s माइनस 3s माइनस 2y माइनस कॉमन काट लो ये 3s
प्लस 2 वाई बार इज इक्वल टू -20। उधर जाके 20 ऐड हो गया तो माइनस हो जाएगा 3 -3s प्लस 2। ठीक है जी, ये आ गया। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਮ ਨੀਚੇ डिवाइड कर ਲਾਂਗੇ सारे ਨਾਲ। ये टर्म डिवाइड की अपने ये आ गया जी डी वाई बाय डी एस प्लस हो जाएगा 3s प्लस 2 अपॉन एस कॉमन कर लो एस प्लस 1 20 और एस ये आ गया जी वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आऊगा ਇਹਦਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 3s plus 2 upon s plus 1 ds। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ अपॉन s ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ s ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਇਹ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ s plus 1 ਆ ਤਾਂ s ਨੂੰ -1 ਭਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ -1 ਤੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ds ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2 log s plus 1 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ log s स्क्वायर s plus 1 e log कैंसिल हो गए s स्क्वायर s plus 1 ये अपना तो देयरफॉर सॉल्यूशन होगा y बार इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to integration q into integrating factor ds plus c। तो आ टर्म तो कैंसिल हो गया जी। तो ये आ गया y बार s स्क्वायर s plus 1 is equals to 20 इंटीग्रेशन करते जी प्लस c। ओवरऑल y बार का आंसर आ गया 10s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर s प्लस 1 प्लस c अपॉन s स्क्वायर s प्लस 1। तो ये अपना आ गया। हुण आपां y बार निकल गया, इस तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लैके आपां y कड्डांगे। टेक इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो यह आ गया y इज इक्वल टू इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 10 अपॉन s प्लस 1 प्लस c बार कर लो। चलो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर s प्लस 1 ये नंबरिंग 2 पा के रखना। ये तो आ गया 10 बाद चो पाने आप इन्हें इदा कर लो पहला यदा 10 e की पावर -t आ गया ये c इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ s स्क्वायर s प्लस 1 ये आ गया। इहदा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म सॉल्व करने वास्ते पार्शियल फ्रैक्शन यूज करांगे। कंसीडर किया जी 1 अपॉन s स्क्वायर s प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन s b अपॉन s स्क्वायर c अपॉन s प्लस 1। ये आ गया 1 इक्वल टू a s प्लस 1 b s प्लस 1 c s स्क्वायर। s ਨੂੰ 0 पुट करांगे 0 इज इक्वल टू b 1 इक्वल टू सॉरी b b की वैल्यू 1 आ गई। फिर s ਨੂੰ -1 पुट किया 1 इक्वल टू 0 0 c c भी -1 c 1 आ गया। हम बाकी वास्ते कोएफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए हमने कर रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर
ये 0 आ गया, एस के का ऑप्शन ए आ गया, ए प्लस सी आ गया, तो सी की वैल्यू माइनस, ये सारे वैल्यूज आ गए। देयरफॉर वाई कितना आ गया 10 ई दी पावर माइनस टी, इस वैल्यू भर रहे हैं, प्लस सी इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए होगा जी -1/s प्लस 1/s स्केयर प्लस 1/s प्लस ए आ गया। ए बी सी भरता तो वैल्यू भरती जी 10 ई दी पावर माइनस टी सी, ये तो आ गया -1 प्लस टी ई दी पावर माइनस टी। अगे गल ये इंपॉर्टेंट है, वो है कि इंपॉर्टेंट एक कंडीशन हो दी हुई सी लिमिट वाली, ये कॉन्सटेंट फाइंड करने वास्ते कंडीशन होंगी ने, कॉन्सटेंट तो सी या सी कट्टन वास्ते कंडीशन दी हुई है अपन आलसो लिमिट टी टेंड्स टू इनफिनिटी वाई, ये पक्का की आना चाहिए 0 होना चाहिए, ये गल समझनी है ध्यान नाल। तो लिमिट लैने आप की बनूगा ये, देयरफॉर दोनों पासे लिमिट ली, लिमिट टी टेंड्स टू इनफिनिटी वाई, लिमिट टी टेंड्स टू इनफिनिटी 10 ई दी पावर माइनस टी सी -1 प्लस टी प्लस ई दी पावर माइनस टी। ये वैल्यू दी हुई है अपन 0। ई दी पावर माइनस इनफिनिटी कितना होता ध्यान च होगा, ई दी पावर माइनस इनफिनिटी 0 होंगे सी, ये -1 ये इनफिनिटी है, ई दी पावर माइनस इनफिनिटी 0 वैल्यू भर कि ए चों ये आ गया अपने को 0 इक्वल टू सी, इनफिनिटी प्लस 1 कितना कितना होगा इनफिनिटी होगा। हूँ ये सॉल्व करना औखा लगे सी किमें कढ़ी आप कढ़ना आप सी है, वैसे सी कढ़ सकते हैं जो गल समझ आती हैगी, अदरवाइज वो तरीका लावे, इनफिनिटी 1/0 होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करता सी की वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन सॉल्व करने दो तरीके होंगे, पहला पढ़िया होंगे, एक तो होंगे कि प्रॉपर सॉल्व करना होंगे, एक होंगे हिट एंड ट्रायल मैथड, मतलब मैं किसी मैं ये 1 ऐड करा कि 2 बन जाए, इस नंबर च 1 ऐड करिए कि 2 बन जाए, बाय हिट एंड ट्रायल मैथड 1 ही होगा आंसर, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਕੇ प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी दो तरीके होंगे प्रॉपर सॉल्व करना, हिट एंड ट्रायल मैथड, अदरवाइज सीधा हिट एंड ट्रायल मैथड भी कर सकते हैं। किमें जे टी ਨੂੰ इनफिनिटी करांगे ਇਹ चीज़ इनफिनिटी बनाऊगी, जो टी ਨੂੰ ਆਪਾਂ इनफिनिटी भरांगे आ टर्म इनफिनिटी आ गया, टर्म इनफिनिटी बन जाएगी, सी ਨੂੰ 1 2 3 4 5 जो मर्जी बनी जाए इनफिनिटी बन जाना, जबकि चाहिए कि अपना आंसर 0 चाहिए, यह टी करके आंसर इनफिनिटी आऊगा, जे टी इनफिनिटी हो गया ये इनफिनिटी ने सारा इनफिनिटी कर देना, तो फिर 0 आंसर कदों आऊगा, तो 0 आंसर तो आऊगा जो फैक्टर ना हो, जे मान लो ये फैक्टर ना होंदा फिर ये फैक्टर ना होंदा फिर ये तो 0 आ गया सी आंसर, ई दी पावर माइनस इनफिनिटी 0 होंदा, जे ये फैक्टर अगे प्रॉब्लम आ रही है, जे इनफिनिटी बन गया इन्हें सारा इनफिनिटी कर देना, तो मतलब कि फिर ये फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कि सी 0 होना चाहिए, तो ही फैक्टर खत्म होगा, ये हिट एंड ट्रायल मैथड। जे प्रॉपर सॉल्व करना प्रॉपर सॉल्व आप इदा कर सकते हैं, देयरफॉर सी का आंसर चक के भर देंगे, तो वाई का आंसर आ गया 10 ई दी पावर माइनस। चलो ठीक है जी, ये एक्सरसाइज ट्राई कर लियो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो, थैंक यू।